Assalamu alaikum and good evening to one and all. We are starting our today's program and I welcome one and all on behalf of AMP Web Talk and a small introduction about AMP. AMP is registered in India, USA, UK and Australia as a non-profit organization. AMP has completed its 14 years serving our community in the field of education, employment and empowerment. AMP has a vision to positively impact lives in 10 million people by 2030. AMP's mission and vision, if you look at its vision and vision, to empower the underprivileged for the greater benefit of the society in general and nation as a whole, and to be a model community which is advanced in education, socially progressive, culturally vibrant, politically influential, economically dynamic. And these few of the flagships, AMP flagship projects are Employment Assistance Cells, EAC, Employability Training Program called ETP, and AMP Zakat Fund, that is AZF. AMP flagship projects are even includes National Talent Research and the IndianMentors.com, AMP Web Talks and webinars. And other flagship projects are Higher Education Scholarship Guidance, Education Excellence Awards, and connecting with the NGOs, professors, international education guidance, social excellence, campus connections, and much more. And it has got tremendous achievements in all it keeps on showing its growth in every cell, like employment and assistance cells shows 30,000 plus candidates were employed by now by AMP, and 61,000 AMP powered jobs.com where candidates were registered, and we have got 1,16,000 overall national talent search students registered, and 56,000 students registered on this app for various programs like career counseling, scholarship guidance, employment training, and financial assistance. And in IndianMentor.com, there are 266 plus senior industry professionals registered for mentorship. And there are a lot more achievements. I would like you all to go through the website to see its greater achievements. To start with today's, and it has been partnered with and is a volunteer organizations, and it is even partner, it has got sponsors, donors, patrons, and is supported by the community. To begin with, we would like to welcome our today's speaker, Dr. Babli Parveen. Dr. Babli Parveen is a historian with a specialization in medieval Indian history, author and assistant professor of history at the University of Delhi. She has published 3 books and several research articles in reputed international journals in the area of history of Sufism, in South Asia, social and cultural history of India, and on minority issues. She has been a speaker, chairperson in the 14 international and 18 national conferences in India and abroad. She is the recipient of prestigious international awards, the International Creative Mind Awards at the 6th Global Award event in 2016, which was organized by IBEI and YSSRF, United Kingdoms. The Women Empowerment Award at 6th Global Economic Summit by the WTC Mumbai 2017. The Under 30 Young Academician Award for Brilliance in the Field of Literature and Education in 2018, conferred by Bharat Nirman Organization. We are glad to have you, ma'am, with us today. Over to Dr. Babli Parveen for Career Guidance Program. Thank you, ma'am. Okay, very good afternoon to everyone. Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank you for the very kind introduction, and thank you very much to the entire team of AMP and Amit Aditya sir for suggesting my name as the speaker for today's career counseling for arts and social sciences students. Before direct hitting to the subject that what are the scopes in these 2 areas for 10th and 12th students who are studying probably between 9 to 12 standards, I just want to
point out certain things which is common for all the students, regardless what discipline you are going to choose. I'll try to be bilingual in my lecture because I have been told that there are students from Hindi medium as well, so I'll try to be bilingual. And I'm hoping कि शायद कुछ parents भी होंगे जो अपने बच्चों के शायद इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे. सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे हम बार-बार बात कहते हैं राइट करियर क्या होना चाहिए, राइट ऑप्शंस क्या होने चाहिए फ्यूचर के लिए. राइट और रॉन्ग ये दोनों चीज़ें एक्चुअली मैटर नहीं करती. सूटेबल आपके लिए क्या है? द टर्म शुड बी सूटेबल करियर फॉर यू एज़ पर योर स्किल्स, एज़ पर योर इंटरेस्ट एंड व्हाट आर द स्कोप ऑफ developing of those skills which you already have. And if you don't have certain skills, but if you have the interest, so you can basically develop your skill over the time period. तो एक करियर को डिसाइड करने के लिए या फ्यूचर आपको क्या करना है डिसाइड करने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप साइंस डिसिप्लिन के हैं, कॉमर्स के हैं या आप आर्ट्स और सोशल साइंसेस में आके पढ़ाई करना चाहते हैं. नंबर वन, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि आप किन सब्जेक्ट्स में एफर्टलेसली गुड है. Everybody, like when we were in school, so we all remember there are certain subjects we are effortlessly good and there are certain subjects which are good from the perspective of job, but it seems to be difficult to us. तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. तो अगर आपको मालूम है कि कोई एक सब्जेक्ट है या कोई एक एरिया है डिसिप्लिन जिसमें करियर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें आपकी मास्टरी होने के बहुत कम चांसेस है, मतलब अगर आप उसमें पूरा टाइम एफर्ट भी लगाते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये हेजिटेशन है कि शायद आप उसमें बहुत अच्छा उस डिसिप्लिन में नहीं कर पाएंगे. जैसा साइंस के स्टूडेंट्स के साथ होता है, कई बार होता है पीयर प्रेशर होता है, पेरेंट्स का एक इंक्लिनेशन होता है या ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं. सोसाइटी में भी एक साइंस के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आर्ट्स और साइंस के बीच में कंफ्यूज रहते हैं, वो अल्टीमेटली पीयर प्रेशर में जाकर साइंस सब्जेक्ट या कॉमर्स सब्जेक्ट, उसे सेकेंड लेवल पे जो इम्पोर्टेंस, मतलब जो एक सोसाइटी ने नॉर्म सेट किए, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, वो चूज कर लेते हैं एंड देन इवेंचुअली दे रियलाइज दैट दे आर नो वेयर. वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज when I get into the admission work in the university, कम से कम 50 से 60% स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और वो ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन ले रहे होते हैं. सो दिस इज समथिंग नॉट गुड फॉर योर करियर, बिकॉज आपने जब 10th से लेकर 12th तक साइंस सब्जेक्ट में बहुत हार्ड वर्क किया, यू इवन गॉट 90% और 80-85% मार्क्स, लेकिन क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई था तो इसकी वजह से आपको सडनली अपना डिसिप्लिन चेंज करना पड़ा और इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है आपके ओवरऑल फ्यूचर करियर पे. क्योंकि आप, क्या होता है कि बाय चॉइस क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट चूज नहीं किया तो आपको मे बी मिनिमम 1.5 years लग जाते हैं और आपको हमेशा रिग्रेट सा रहता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अंडरस्टैंड एवरी सिंगल स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट एट द मोमेंट इन दिस लेक्चर, जस्ट मेक श्योर कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं अपनी सारी एनर्जी, अपने सारे फोकस के साथ, और उसी सब्जेक्ट, उसी एरिया, उसी डिसिप्लिन में जाने की कोशिश करें. किसी पीयर प्रेशर में आकर कुछ ऐसा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है कि जिससे आप बाद में अच्छा नहीं कर सके. अब बात आती है आर्ट्स और सोशल साइंस में भी, मतलब एक ह्यूमैनिटीज, आर्ट, सोशल साइंस एंड नाउ वी हैव लिबरल आर्ट्स आल्सो व्हिच आई विल टॉक अबाउट लेटर ऑन इन माय टॉक. इसमें भी बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं बिकॉज देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. किस सब्जेक्ट में कितने करियर ऑप्शंस है, पहले आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए. नंबर टू, आपके पास कितना टाइम है, क्योंकि हर करियर, हर सब्जेक्ट वाइज एक करियर एस्टैब्लिशमेंट का एक नॉर्म्स होता है, 3 years, 5 years, 7 years, 8 years, इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू बिकम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. क्या आपके पास बहुत वक्त है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बी एन academician, if you want to be the professor in the university, you need 10 years after your 12th standard. So do you have that time with you? अगर आपको लगता है you can actually devote next 8 to 10 years, 8 years if not 10 years exactly, then you should start going into that direction. If you feel that you want to be teacher but a school teacher, because you cannot wait that long, आप आराम से ग्रेजुएशन के बाद आप
+2 आप +2 के बाद करते तो 4 years, और अब ग्रेजुएशन के बाद करते तो आप 2 साल में बीएड कर सकते। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम है, फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन एक्चुअली वेट टू स्टार्ट टू अर्निंग। थर्ड पॉइंट है कि आप सभी की अपनी एक इनबिल्ट स्किल्स होती है, हर स्टूडेंट की, हर इंसान की होती है रादर। किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, किसी की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, किसी का प्रेजेंटेशन करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे अपने प्रेजेंटेशन पे, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लिए बहुत सुटेबल होता है। सिमिलरली, अगर आपको लगता है कि आपका प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा है, तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी कॉर्पोरेट जॉब्स है, आप बीबीए एमबीए वगैरह कर सकते हैं। तो आपको अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट करियर चूज करने में या डिसिप्लिन चूज करने में ये होना चाहिए कि अगर आपको पता है कि कोई एक सब्जेक्ट है या कोई एक डिसिप्लिन है जिसमें अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है, एक्स्ट्रा एफर्ट से मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में 2-3 घंटे पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट में 6-7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बाकी जो आपको समझ में आता है उससे कहीं ज्यादा है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप, जैसे सोशल साइंसेज के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक एग्जाम्पल मैं देना चाह रही हूँ, या हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें plenty of job opportunities है। Yes, economics is a little difficult in comparison of the other social sciences subjects because there are numericals, there are mathematics as well. तो लेकिन अगर आपने हिम्मत कर लिया, अगर आपने उस सब्जेक्ट को अपना फ्रेंड बना लिया, तो आप यकीन मानिए कि आप 1-2 साल में आपको ये रियलाइज होगा कि आपका जो डिसीजन था थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेने का, दैट हैज स्टार्टेड पेइंग यू ऑफ। बिकॉज कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनको लेने से स्टूडेंट थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनके पास उसका कोई बेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, या ऐसे ही इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप थोड़ा सा उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट कि आपको उस सब्जेक्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा, तो उसके जो शॉर्ट कमिंग्स होंगी, मतलब उसके लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे जो रिटर्न्स आपको आएंगे वो भी बहुत मायने रखते हैं। तो कई बार करियर का डिसीजन इस बेस पे भी स्टूडेंट्स को लेना चाहिए। हमेशा आसान सब्जेक्ट को या हमेशा सिर्फ एक सब्जेक्ट जो मुझे पसंद है पढ़ना, उस बेस पे भी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बिकॉज करियर में ऑप्शंस क्या है वो देखना आपको बहुत जरूरी है। लास्ट एक जनरल पॉइंट जो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी, ये सभी मैं जनरली सभी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स जो आगे जो भी डिसिप्लिन लेना चाहें सबके लिए कहना चाहती हूँ। एक चीज याद रखिएगा, आपको ऑनेस्टली आफ्टर 12th भी you have to give 6 to 7 years to your career, minimum 6 to 7 years, regardless whatever discipline you choose. Why I'm saying 6 to 7 years? Because after 12th it will take 3 years minimum and 5 years generally to complete the course to become eligible for a certain positions, for certain professions. Then you have to start gaining your skills in that profession after getting the job. तो रफली 7-8 साल का जो आपके करियर का टाइम पीरियड होता है आफ्टर 12th, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो एक तरीके से सिर्फ आप लोगों ने सुना होगा, जैसे एक बैंकिंग इन्वेस्टमेंट होता है जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है, जो आप मंथली 1000, 2000, 3000 से करते हैं, लेकिन 10 साल के बाद वो अमाउंट करोड़ों रुपए में तब्दील हो जाता है। तो आपका जो 8-10 साल का ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, ये 8-10 साल के बाद आपको अगले 50 साल जो रिटर्न्स मिलेंगे वो इसी मेहनत के बेस पे मिलेंगे। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से हमेशा ये कहती हूँ, जनरली जब भी कभी मेंटर्स का मुझे कोई मौका मिलता है मेंटरशिप करने के लिए यूनिवर्सिटी में भी, तो मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ाई जो आप करते हैं, मेहनत जो आप करते हैं, आपकी फैमिली को और आपके पेरेंट्स को सिर्फ खुशी होती है, बिकॉज बाय द टाइम यू स्टार्ट अर्निंग यू विल बी 25, 26 एंड सो ऑन, सो योर पेरेंट्स विल बी 50+ ऑलरेडी, राइट? So they are not going to enjoy your success in terms of materialistic life. They will be just happy. लेकिन आपने जो 8-10 साल अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगले 50 साल उसका रिटर्न आपके पास आएगा, in terms of fame, in terms of name, in terms of money, in terms of respect you will earn in the society for next 50 years. So just try to be focused. First, get the
clarity what you want to become. Number two, get the proper guidance from your teachers or any career counselor who can guide you. Number three, be consistent person in your efforts. ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आप जो भी डिसिप्लिन चूज करते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, अगर आप ऑनेस्ट है, आप हार्ड वर्किंग है, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं, आपको सक्सेस मिल के रहेगी। चाहे आप साइंस में पढ़ाई करें, कॉमर्स में करें, या फिर आप आर्ट्स में करें। तो ये कुछ जनरल मुझे लगता है, ये सभी स्टूडेंट्स को ये चीजें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। स्पेशली जो आपका 10th से 12th तक का टाइम पीरियड होता है, दैट इज अ वेरी डिसाइसिव पीरियड इन योर करियर and in your life as well, because career acquires the 50-60% of your entire life happiness and everything, rather, as I just mentioned, fame, name and money, everything. So just try to be honest with your study. That will pay you for next 5 decades without any hassles. Now I will start talking about arts, social sciences. स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन होता है बिकॉज देर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंस है, नाउ देर इज लिबरल आर्ट ऑल्सो। तो ये 4 कैटेगरीज आखिर है क्या? देखिए, स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा मोटे तौर पे। आर्ट्स जब शुरू हुआ था तो इसमें 4-5 बेसिक सब्जेक्ट होते थे, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, फिलोसफी है, और सोशियोलॉजी है। 4-5 ब्रॉडर सब्जेक्ट्स में होते थे। इसके बाद ओवर द पीरियड ह्यूमैनिटीज actually overshadowed or became the extended version of arts. उसमें क्या हुआ, बहुत सारे other subjects actually इसमें include होते चले गए, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, मास मीडिया, मैनेजमेंट, सब धीरे धीरे करके ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज ऑफ कोर्स, ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस एंड नेशनल लैंग्वेजेस एज वेल, ये फिजिकल एजुकेशन, ये सब ह्यूमैनिटीज का पार्ट बन गए। तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज अलग अलग नहीं है, ह्यूमैनिटी इज द ब्रॉडर वर्जन ऑफ आर्ट्स। नाउ व्हाट इज सोशल साइंस? सोशल साइंस इज लाइक एन अम्ब्रेला which covers arts, humanities, and then there are certain different subjects. Social science is actually like an umbrella, जिसमें आप एंथ्रोपोलॉजी भी कवर करते हैं, कल्चरल स्टडीज होता है, जेंडर स्टडीज होता है, डेवलपमेंट स्टडी, क्रिमिनोलॉजी। तो इसने इसका जो आकार है और बड़ा कर दिया। लास्ट में आजकल बहुत पॉपुलर एक डिपार्टमेंट होता है जो आईआईटीज में एस्टैब्लिश किया गया है, आईआईएम्स में एस्टैब्लिश किया गया है, आईआईएससी बैंगलोर में एस्टैब्लिश किया गया है, जिसे लिबरल आर्ट्स कहते हैं। इसके अलावा भी इंडिया की टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लिबरल आर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया। लिबरल आर्ट्स क्या है? नाउ लिबरल आर्ट्स इज द लास्ट एक्सटेंडेड वर्जन यू कैन सी ऑफ ऑल दीज थिंग्स बेसिकली, जिसमें क्या है, इसमें ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के साथ साथ नेचुरल साइंस के भी सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। जैसे इसमें जियोलॉजी, अर्थ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, फॉर्मल साइंस, इन सबको शामिल किया गया है। सो नाउ बेसिकली लिबरल आर्ट्स आर द सेंटर्स वेयर यू स्टडीड all the subjects of humanities and social science plus couple of the subjects of science as well. तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आर्ट्स क्या है, सोशल साइंस क्या है, ह्यूमैनिटीज क्या है और लिबरल आर्ट्स क्या है। लिबरल आर्ट्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आपको पता होना चाहिए। आईआईटी में अगर आपका पढ़ने का सपना है और आप चाहते हैं कि आप अपने सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की स्टडी वहां कर सके, तो लिबरल आर्ट आपको वो मौका देता है। इंडिया में सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज को लेकर या आर्ट्स को लेकर थोड़ा सा एक बहुत लंबे वक्त तक, मैं कहूँगी 90s तक रादर, एक बड़ा ही बायस्ड अप्रोच रही है सोसाइटी में कि जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो साइंस पढ़ते हैं, जो थोड़ा उससे कम होते हैं वो कॉमर्स डिसिप्लिन चूज करते हैं, और जो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते वो आर्ट्स या सोशल साइंस पढ़ते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हर सब्जेक्ट का, हर डिसिप्लिन का एक पीक टाइम होता है हर कंट्री में, वो जो जॉब से जुड़ा हुआ होता है। अगर आज आप देखेंगे, सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको 30-35 प्लस से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलते हैं एज पर योर चॉइस। इंडिया में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की इम्पोर्टेंस को स्टैब्लिश होने में जरा ज्यादा वक्त लग गया इन कंपैरिजन ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, बट बिलीव मी, इन टुडेज वर्ल्ड, इन टुडेज इंडिया, you have more job opportunities being the students of arts or social science
rather than being the student of science or commerce. और आप इस बात का अंदाजा इस चीज से भी लगा सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स पढ़ने के लिए आते हैं। अगर आप लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज देखेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा नंबर्स में फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में आते हैं, चाहे जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, बीएचयू, एएमयू। यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा है। फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने क्या आते हैं इंडिया में? फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में साइंस पढ़ने नहीं आते, फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में कॉमर्स पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में ह्यूमैनिटीज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। So this is the clear indication, this is the clear evidence to everybody to understand कि अगर यूरोपियंस अपनी कंट्री छोड़कर अपने उनके पास इतने ऑप्शंस होते हैं, और अमेरिकन, सो मेनी अदर साउथ एशियन स्टूडेंट्स रादर, नेपाल, बर्मा, कोरिया से आ रहे हैं, तो वो क्या पढ़ने के लिए आते हैं? एंड आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, इट इज जस्ट नॉट आई एम सेइंग जस्ट टू मेक माई पॉइंट राइट। आप देखेंगे तो वो सब के सब पढ़ने के लिए आते हैं, ईदर लैंग्वेजेस और डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेस, इट कुड बी फिलोसफी, इट कुड बी हिस्ट्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसी से आपको अंदाजा लग जाता है कि फाइनली इंडिया में सोशल साइंस और आर्ट्स की जो इम्पोर्टेंस बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन जो बायसनेस का एक शिकार हो गई थी, अब वो मिलना शुरू हो गई है। लेकिन अब यहाँ ये तो बात हुई कि ओवरऑल सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको सोशल साइंस में और आर्ट्स में है, लेकिन और इसको कभी डिमीन नहीं, मैं आपको स्टूडेंट्स की बात बताना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है कि आप ऑनर्स करेंगे इन सब्जेक्ट्स में तभी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे बहुत ज्यादा होंगी। अगर आप पास कोर्स में भी इन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन सही मायनों में चूज करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, तो रादर आपके पास मास्टर्स करने के ज्यादा ऑप्शंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने BA पास कोर्स में एडमिशन लिया and you have Hindi, history, economics and pol science, so you can pursue your master in any of these subjects, right? But if you take your history honors and you want to pursue your master in a different subject, probably in sociology and some other subject, there is the deduction, there is the mark deduction basically. तो इसीलिए पास कोर्स के स्टूडेंट्स को भी कभी, बिकॉज मैंने बहुत देखा यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि पास कोर्स के स्टूडेंट्स को के अंदर भी ये एक फीलिंग होती है कि ऑनर्स के स्टूडेंट्स उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और पास कोर्स को थोड़ा सा डिमीन किया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पास कोर्स के थे, they cracked the entrance exams of JNU. Some of them are pursuing masters, some of them going actually pursuing their PhD. कुछ ने स्टेट सर्विसेज एग्जाम भी क्लियर कर लिए। किसी भी लेवल पे अपने डिसिप्लिन को लेके कभी आपके अंदर कोई भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी आपको समझने की जरूरत है, चाहे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है या हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, इन सब के सब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे, दे ऑल आर फ्रॉम सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस पीपल आर एवरीवेयर सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट। डोंट लुक देयर पोजीशन फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट दे आर वेरी क्वालिफाइड बेसिकली इन टर्म्स ऑफ being a qualified. If they would have not got into the politics, they must be doing a very good job because they had a very good qualification. सेंट स्टीफन से पढ़े हैं, हिस्ट्री के पढ़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए हैं, तो उनके पास जॉब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं आती। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना करियर अच्छे से बना सकते। एक सवाल मुझे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं जनरली यूनिवर्सिटी में और वैसे भी कभी कोई काउंसलिंग का इवेंट होता है कि हमारा नेचर बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, madam, I'm a very reserved person, I'm a very introvert person, so for me there are very limited options which I feel are suitable for me. Let me tell you students, being introvert or being extrovert is not the qualification to choose any subject or reject any subject or discipline. I have been a very introvert person. I'm still मैं किसी और का एग्जाम्पल देने की बजाय अपना एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहूंगी। I'm still a very introvert person. What is important when you need to speak, when you need to communicate, when you need to express yourself on a professional front, you should have a good communication skill. इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास जो करियर अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, बिल्कुल भी नहीं है। जिस वक्त आपको बोलना है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आपको लिखना है, बिकॉज ओवरऑल तो आप एग्जाम में लिखते हैं,
आपकी जो सारी क्वालिफिकेशन होती है उसका 70-80% जो डिसाइसिव फैक्टर होता है वो एग्जाम होता है, जिसमें आपको लिखना होता है। तो उसमें इंट्रोवर्ट होने से या एक्सट्रोवर्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रादर without discriminating about extrovert person, I would tell to students, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। सोशल साइंस और आर्ट्स में आपको सिखाया क्या जाता है? बेसिकली आपको सिखाया जाता है हाउ टू एनालाइज थिंग्स क्रिटिकली। Once you choose a subject like history or philosophy or sociology or pol science, people call you a social scientist like once you get the PhD degree, which means so you basically supposed to look the dynamics of society and human behavior. And for that, you need to be critical in your approach. Being a very good observer, being a very good analytical person, you need to be actually very calm and composed. तो सोशल साइंसेस और आर्ट्स तो ऐसा डिसिप्लिन ही है कि जिसमें अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। डोंट थिंक इट एज अ बैरियर, बट इवन इफ यू चूज अदर डिसिप्लिन, whether it's science or commerce, never ever decide on the basis that you are introvert. It doesn't matter at all, because if you have the confidence and if you know that when you speak, when you need to speak and what you need to speak, it's just as good as enough as being an extrovert. Introvert rather had a, I have always seen they have a very good command that how much they need to speak, rather than narrating stories or rather than stretching things too much in their expression. So never ever think being an introvert person, it will be a barrier for you for choosing any career. Even I will talk about later on mass media, या आप अगर जर्नलिज्म में भी जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मीडिया में होने के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रावर्ड होने की जरूरत है, अदरवाइज तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीवी में आप जिन लोगों को देते हैं न्यूज चैनल्स पे, दोस आर एंकर्स। एंकर्स आर डिफरेंट फ्रॉम जर्नलिस्ट, right? When you are interested for journalism, and how can you pursue your journalism? Because social science के स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड होती है जर्नलिज्म में, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स की नहीं होती। क्यों? क्योंकि न्यूज में आपको दिखाना क्या होता है। आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल्स की व्हाट न्यूज चैनल्स आर शोइंग these days, but what is real journalism is to basically understand the society, its problem, its issues, its people, and how to connect stories basically. And being a social scientist, you can do this work very good in comparison of any other discipline. And you can pick up the CV of any prominent journalist of India, and you will find they actually 90% of them actually studied social sciences. So social sciences एक ऐसा है कि जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होने का कोई फर्क नहीं, और ये किसी भी उसमें नहीं है। इसी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना होता है दैट दे हैव द कंसंट्रेशन इशू, और उनको लगता है अगर आपको साइंस पढ़नी है तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, कंसंट्रेशन तो आपको हर डिसिप्लिन के लिए चाहिए। यू हैव hard working, similarly very concentrated mind if you want to achieve success in your life. ऐसा नहीं कि अगर आप नीट का एग्जाम लिख रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही आपको कंसंट्रेशन चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी कोर्स में अच्छा करना है तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। मेडिकल के स्टूडेंट्स का टाइम पीरियड ज्यादा हो सकता है स्टडी का, देयर आर सर्टेन रीजंस, लेकिन सोशल साइंस के स्टूडेंट्स का भी टाइम पीरियड अच्छा खासा होना चाहिए और विद प्रॉपर कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। आप अगर 4 घंटे या 5 घंटे, मुझे लगता है जनरली हर स्टूडेंट को, आप लोग अभी 10th से 12th के बीच में है जहां तक मुझे अंदाजा है, सब्जेक्ट वाइज पर आवर आपको रोज पढ़ना चाहिए, तभी आपका जो बेस है वो स्ट्रांग रहेगा। अगर आप सिर्फ होमवर्क करके आपको लगता है दैट यू आर डूइंग जस्टिस विद योर सब्जेक्ट, that is not right. You are actually doing injustice with your career. Homework karna is part of your curriculum. It is not the entire curriculum, let me tell you. You have to study at least 1 hour every day for every subject. If you can't manage it to 1 hour,
40 मिनट्स मिनिमम। 5 सब्जेक्ट है, 5 घंटे नहीं पढ़ सकते तो टोटल आप उसको 4 आवर्स में कीजिए। तो कंसंट्रेशन भी अगेन सबके लिए जरूरी है, सिर्फ साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं है। आर्ट्स और सोशल साइंस का और एक बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आपने अगर आप एक बोर्ड रूम में मैं कहूँगी या एक अच्छी गैदरिंग में 5 लोग अगर बैठे हुए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और सोशल साइंस के हैं और लिटरेचर के हैं, फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर इज अगेन पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज। सबसे अच्छा सोसाइटी, कल्चर, कंट्री को लेके जो डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो पर्सपेक्टिव होगा, जो फैक्ट्स होगा, वो सोशल साइंस के स्टूडेंट के पास हमेशा ज्यादा होगा। साइंस और कॉमर्स में दोज आर वेरी टेक्निकल एरियाज, दोज आर वेरी स्किल बेस्ड डिसिप्लिन बेसिकली। इसीलिए साइंस और कॉमर्स के, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन देम, बट देयर कोर्स स्ट्रक्चर्स आर such basically that they can't afford to spend time on understanding about the history of India, about the politics, about the human behavior, about society and so on. सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पिक कर लीजिए, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पोल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी सिंगल सब्जेक्ट्स नहीं होते, दे ऑल आर कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो भी आपको पॉलिटिकल साइंस पता होगी, तो भी आपको सोशियोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है, तो भी आपको ज्योग्राफी पता होता है। अगर आपने सोशियोलॉजी में ऑनर्स किया है या मास्टर्स किया है तो भी आपने हिस्ट्री पढ़ना, आप उसका पार्ट ही होता है हिस्ट्री, पोल साइंस, तो इसीलिए जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं दे आर वेरी गुड putting their thoughts or perspective or on tables basically, because why, they have studied thoroughly about the society, human evolution and the dynamics, the issues, the complexities of human behaviors। और इसीलिए जब बात होती है, कहीं डिस्कशंस होता है, आप कभी नोटिस कीजिएगा तो अगर उसमें कोई सोशल साइंस, मेरा यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस अगर आपने सुपरफिशियल पढ़ा है तो आपके बातों में वो जस्ट हो गए, आपके आर्गुमेंट में वो फैक्ट्स होंगे। ये तभी काम करते हैं जब आपने अपने सब्जेक्ट को बड़ी ही तन्मयता के साथ, बड़े ही ग्रेविटी के साथ पढ़ा और समझा होगा। ये हमेशा आपको हेल्प करती है। इंडिया में अगर आपको नहीं पता है, कभी आप सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, उसमें देखिएगा जजेस से लेकर एडवोकेट, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स वगैरह भी होते हैं, वो हिस्ट्री को बहुत कोट करते हैं। क्यों कोट करते हैं वो? और ऐसा नहीं है कि वो हिस्ट्री को सिर्फ उस पर्टिकुलर मैटर के लिए पढ़ते हैं। एक्चुअली हर लॉयर जो इंडिया के टॉप लॉयर्स होते हैं, अगर आप पर्सनली जानते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई नो 4-5 वेरी टॉप मोस्ट लॉयर्स ऑफ इंडिया, दे हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री बुक्स, सोशियोलॉजी बुक्स, ऑफ पोल साइंस। हिस्ट्री तो सभी पढ़ेंगे, क्यों पढ़ते हैं? उनके आर्ग्यूमेंट में एक डेप्थ इंक्रीज होता है। वो लिटरेचर बहुत पढ़ते हैं, जो लॉ के भी अच्छे अच्छे जो जुडिशरी के से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो लिटरेचर भी बहुत पढ़ते हैं और हिस्ट्री बहुत पढ़ते हैं। तो these are the powers of social sciences subjects. So you have to always feel very empowered if you choose any of these subjects in future, and if you do justice with that subject in terms of putting your all efforts. अब जैसे मैंने बताया, बड़ी लंबी फहरिस्त है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, इसमें सारे लैंग्वेजेस आ जाते हैं। मैं अब दोनों को क्लब करके आपको बता रही हूँ, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, बिकॉज ह्यूमैनिटीज इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आर्ट्स, देन वी हैव सोशल साइंसेस, और आपके लिबरल आर्ट्स जिसे आप कहते हैं वो भी है। जॉब पर्सपेक्टिव से इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद एक कॉमन जॉब आप सबके पास, जिसके लिए आप अगर 12th के बाद फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ के। आप ह्यूमैनिटीज का पढ़े या सोशल साइंस का पढ़े, एकेडमिक इज वन ऑफ द कोर जॉब एरिया फॉर दिस, यू हैव टू रिमेंबर। एकेडमिक्स को भी हम 2 कैटेगरीज में बांट देते हैं, एक होता है स्कूल लेवल के टीचर और दूसरा होता है यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर। यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, जैसा मैंने शुरू में बताया, यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस, बिकॉज आपको 12th करनी है, उसके बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट हिस्ट्री, पोल्स एंड सोशियोलॉजी, जिसमें भी आप बनना चाहते हैं प्रोफेसर, उसमें आप मास्टर्स करेंगे। उसके बाद आप नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, या फिर स्टेट का जो होता है
टेस्ट वो देंगे, उसके बाद आप पीएचडी करेंगे, तब जाकर आप लेक्चरर बनने के लिए क्वालिफाइड करते हैं। लेकिन इन सभी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ के आप इंडिया में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन सकते हैं। नंबर 2, इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड दोज नंबर ऑफ इयर्स, बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि 8-10 साल नहीं है, आप स्कूल लेवल के लिए आराम से टीचिंग के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे आपने 12th किया, 12th के बाद 4 इयर्स का बीएड प्रोग्राम होता है, +2 उसमें आप ऐड कर दीजिए, आप मास्टर्स कर लेंगे जिसे एमएड कहा जाता है। अगर आपने ऑलरेडी बीए किसी सब्जेक्ट में कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने सोशियोलॉजी में ऑलरेडी बीए कर लिया, तो आपको सिर्फ 2 साल ही बीएड में लगाने पड़ेंगे। तो देयर आर द कॉम्पिटिशन। 12th के बाद अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो ज्यादातर उसमें 4 या 5 साल लगते हैं। जैसे लॉ में अगर आप 12th के बाद सीधा करना चाहेंगे तो आपको 5 साल का वक्त देना पड़ेगा। अगर आप बीए के बाद करेंगे तो आपको 3 इयर्स का टाइम देना पड़ेगा। तो एकेडमिक तो एक ऐसा प्रोफेशन है और इसमें कोई डाउट नहीं है, it is one of the most prestigious job in India in terms of फाइनेंशियल स्टेटस, बिकॉज ये ए ग्रेड जॉब में आता है। तो कभी इसकी मॉनेटरी गेन्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जितना ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी होती है, यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोफेसर्स के जो स्टार्टिंग सैलरी है वो भी शायद उनसे ज्यादा ही होती है, और स्कूल लेवल के टीचर्स का भी अच्छी खासी एक सैलरी होती है। तो एकेडमिक्स की तरफ अगर आपका झुकाव है तो आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स अपने चॉइस के हिसाब से चूज करके आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि दूसरा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, अब इसमें मैं 2 सब्जेक्ट आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूंगी। हिस्ट्री मैं बार बार फोकस इसलिए करी, हिस्ट्री पढ़कर आप सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जर्नलिस्ट बन सकते हैं या लॉ में जा सकते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी, ये सब तो आप कर ही सकते। हिस्ट्री में बहुत डायनेमिक्स है, हिस्ट्री के बहुत सारे विंग्स बने हुए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, ऑफ कोर्स एकेडमिक्स तो है ही, इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं आप हिस्ट्री पढ़ के। अगर आपने बीए कर लिया हिस्ट्री में, आप म्यूजियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, आपको म्यूजियम में अच्छी जॉब मिलेगी। आप आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, जो इंडिया में जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उन सब की देख रेख का कार्य, उसका रिस्टोरेशन की सारी जिम्मेदारी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इतनी बड़ी बॉडी है और वहां पर ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत साल लगाने पड़ेंगे। डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, या 2 साल का एक्सटेंडेड कोर्स है, अगर आप वो पढ़ लेते हैं वहां से तो आपको जॉब के पर्सपेक्टिव बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि आज इंडिया में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अगर कोई एडवर्टीजमेंट निकालती है, मतलब इट इज ऑन रिकॉर्ड, दे क्लेम कि उनके पास एप्लीकेशन ही कम आती क्योंकि लोग ने ये वो कोर्स किए नहीं होते। तो आप बहुत अच्छे से एएसआई में अपना करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 2, हिस्ट्री में ऑप्शन क्या है आपके पास, जैसे मैंने बताया म्यूजियम से जुड़े हुए कोर्स कर लेंगे तो पूरे इंडिया में वी हैव नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, देन वी हैव 4 जोनल म्यूजियम्स इन इंडिया, काफी अलग अलग जो चारों जोन को देखते हैं। उसके बाद हर स्टेट में एक स्टेट म्यूजियम होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में म्यूजियम होते हैं, तो म्यूजियम में भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन होता है आर्काइव्स का, जैसे दिल्ली में भी है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट सॉरी वहां पे आपको आर्किविस्ट का कोर्स करना होगा। तो आपको बीए होना चाहिए और वहां पर 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल का डिप्लोमा होता है। आप जैसे वो डिप्लोमा करते हैं यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट वर्किंग एज एन आर्किविस्ट देयर। वो डिपेंड करता है परमानेंट पोस्ट या एडहॉक पोस्ट आपको इनिशियली क्या वहां पर अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, थिंक टैंक, इंडिया में बहुत सारे थिंक टैंक्स होते हैं। थिंक टैंक का आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां पर डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग से जुड़े हुए बहुत सारी रिसर्च की जाती है और गवर्नमेंट उन रिसर्च के बेस पे आगे अपनी पॉलिसीज बनाती है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक थिंक टैंक है। तो थिंक टैंक इंडिया में बहुत सारे हैं। तो आप हिस्ट्री पढ़े हुए स्टूडेंट्स को या सोशल साइंस के जनरली स्टूडेंट्स को थिंक टैंक में बहुत एंडोर्स किया जाता है, बहुत डिमांड होती है उनकी। क्यों होती है? अगेन क्योंकि थिंक टैंक का काम ही होता है सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन बिहेवियर, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी से जुड़े हुए रिसर्च को करना। तो अगेन यहाँ आपके जॉब पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज तो ऑफ कोर्स हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, और इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी कि यूपीएससी में क्यों इतना पॉपुलर है सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट। तो ये आपके पास है। इसमें लास्ट एक आपके पास और जॉब ऑप्शन होता है, दैट इज
related to travel and tourism. We have a very huge travel industry in India. बहुत बड़ी travel industry है. We have a separate tourism department जो कि Ministry of Culture के अंडर आता है. तो ये कोर्स कंडक्ट करवाते हैं, 1 साल 2 साल के कोर्सेज होते हैं. अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है. इसमें भी आप किसी भी डिसिप्लिन से, सोशल साइंस के हो सकते हैं. अगर आप हिस्ट्री से हैं तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, बट इवन इफ यू आर फ्रॉम अदर subjects of social sciences and humanities, it doesn't matter. You have to do 1 year diploma. Sometimes there are courses for 2 years also. और आपको टूरिज्म में बहुत अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल सकता है. इसी में एक सेक्शन होता है टूरिज्म में, आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जब इंडिया आते हैं, दे नीड इंटरप्रेटर्स बेसिकली, जो उनको ट्रांसलेशन उनके लिए कर सके. तो उसमें जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज से पढ़ाई करते हैं, बिकॉज ह्यूमैनिटीज में लैंग्वेज की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस है जैसे उर्दू, पर्शियन, हिंदी, अरेबिक एंड सो ऑन, और फॉरेन लैंग्वेजेस है जर्मन, कोरियन, चाइनीज, तो इस टाइप की लैंग्वेज होती है. तो जो फॉरेन लैंग्वेजेस में, फॉर एग्जाम्पल कोरियन लैंग्वेज और चाइनीज लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज और जापानीज, ये 4 फॉरेन लैंग्वेजेस की बहुत ज्यादा डिमांड है इंडिया में. क्यों है? बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ जापानीज ब्रांड्स इन इंडिया जिनको जरूरत होती है ट्रांसलेटर्स की. दिस इज मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं अवॉइड करूंगी यहाँ पर. तो उन सबको जरूरत होती है अपनी कंपनी में, एंड यू वोंट हैव एनी आइडिया, दे पे यू सो वेल, लिटरली सो वेल. अगर आप उन कंपनीज में प्लेसमेंट आपको मिल जाता है, जो यूजुअली मिल जाता है, तो आपको उसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है. सिर्फ अगर, हाँ, जैसे जेएनयू में फॉर एग्जांपल 3 साल का कोर्स पूरा आपको बैचलर करवाया जाता है फॉरेन लैंग्वेजेस में. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको डिप्लोमा वगैरह करवाते हैं, और आपको इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़ जाती है. तो ये ब्रॉडली हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बाद आपके पास 8 या 9 मैंने आपको बताया, बट ओवरऑल 13 या 14 जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती है. उसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर भी मैं कहूंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है करियर के हिसाब से, दैट इज इकोनॉमिक सब्जेक्ट. लेकिन इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ एक गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं जो आपको ध्यान रखना है. अगर आप इकोनॉमिक्स में अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहिए दैट आई विल टेल यू. तो आपको अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने का प्लान है फ्यूचर में आफ्टर 12th, देन यू मस्ट हैव मैथमेटिक्स सब्जेक्ट in 11th and 12th. Otherwise, you won't be able to pursue economics honors, at least not in the central universities of India. Because जब तक आपके पास मैथमेटिक्स नहीं होगा, आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन नहीं मिलता. हिस्ट्री या सोशियोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट के साथ ये कंपल्शन नहीं है. ये कंपल्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप 12th में थोड़ा बहुत माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिसमें बहुत कम एक्चुअली फॉर्मूलाज और मैथमेटिक्स होते हैं. लेकिन जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं, क्योंकि पूरी इकोनॉमी को आपको समझना पड़ता है, इकोनॉमी के पूरे डायनेमिक्स को समझना पड़ता है, तो उसमें बहुत अच्छा खासा पोर्शन जो है वो मैथमेटिक्स का होता है. तो अगर आप फ्यूचर में इकोनॉमिक्स पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, ऑनर्स करने की ख्वाहिश रखते हैं, पास कोर्स में तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऑनर्स की ख्वाहिश रखते हैं तो 11th में आप जरूर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन रखिएगा. और ये आजकल स्कूल में काफी आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन यूजुअली इकोनॉमिक्स आर्ट्स के स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता या स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते. सो मैंने अपने 1-2 रिलेटिव्स जो थे, जब उनके बच्चे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 11th में गए, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि स्पेसिफिकली आप सोशल साइंस का सब्जेक्ट है वो तो रखिए ही रखिए, लेकिन आप इकोनॉमिक्स जरूर रखिए. बल्कि साइंस के भी कुछ स्टूडेंट्स को मैंने, जो इनफैक्ट मेरे नेफ्यू है, उनको भी मैंने, साइंस इज एक्चुअली परस्यूइंग साइंस, बट आई आस्क्ड हिम टू गिव वन सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली. तो इसीलिए अब उसके पास साइंस है तो मैथमेटिक्स ऑलरेडी उसके पास है और इकोनॉमिक्स हो गया. तो इकोनॉमिक्स में अगर अच्छे से आपको अपना करियर बनाना है फ्यूचर में, तो याद रखिएगा, यू मस्ट हैव mathematics as one of the subject in 11th and 12th standard. इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपके पास एम्पल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है. एम्पल ऑफ, आई एम लिटरली सेइंग, अगर आप पास कोर्स करते हैं तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज कम होती है. अगर आप ऑनर्स करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, बैंकिंग सेक्टर, ऑल इंडिया इकोनॉमिक सर्वे और यूपीएससी, ये सब तो है. इसके अलावा अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं भी करते, यू विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी. ऑल इंडिया इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, जो
एलाइड सब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। जब वो आप क्वालिफाई करते हैं, यू गेट ऑलमोस्ट द सिमिलर रैंक ऑफ एन IAS ऑफिसर. I am telling you these details because I have couple of my batchmates who basically did their bachelor and in economics honors, and then they appeared for that exam जो UPSC separately economic service के लिए करवाता है, and now they are working in PMO. Now they are working in all the good ministries and they are enjoying the benefits equal as IAS rank. तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत पावरफुल है और उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हाई लेवल की है और इतना मुश्किल भी नहीं है. मैथमेटिक्स है ऑफ कोर्स, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. यू डोंट हैव टू राइट टू मच इन इकोनॉमिक्स. इट्स ऑल जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग. इफ योर concepts are clear, if you understand the fundamentals of the topics very clearly, you can actually do well in this subject, really well. और इसके अलावा रियल स्टेट में सर्विस मैन्युफैक्चरिंग मतलब और थिंक टैंक, ऑफ कोर्स थिंक टैंक में भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड है. वन ऑफ माय स्टूडेंट, ही कंप्लीटेड हिज ऑनर्स एंड देन he got his internship in World Bank. Just imagine, in World Bank directly for a year and so, and then he came to India and now he's working with the RBI. So economics is one of the very good subject in terms of starting your career early, starting earning very early, and you won't have to wait long to get a job. Absolutely not. Third, geography is again a very good subject. ज्योग्राफी का भी एक यूपीएससी सेपरेट एग्जाम करवाता है. तो ये सब वो सब्जेक्ट्स है जिसमें आप यूपीएससी तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे जब इनके सेपरेट एग्जाम्स होते हैं तो आप उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं. ज्योग्राफी इज अगेन वन ऑफ द सब्जेक्ट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड a little bit pol science and sociology. बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत स्कोरिंग होता है. यूपीएससी में वन ऑफ द पॉपुलर सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है हमेशा से. और ज्योग्राफी पढ़ने के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एकेडमिक्स में भी ज्योग्राफी की बहुत डिमांड है बिकॉज ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है. इस तो एकेडमिक्स में तो ये काफी पॉपुलर है. इसके अलावा थिंक टैंक में अगेन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि ज्योग्राफी से ही सरकार ये डिसाइड करती है कहाँ की क्या ज्योग्राफी है, वहाँ की क्या नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ पर कैसे लैंडस्केपिंग चेंज हो रही है. और इसीलिए इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस और रेलिवेंस हमेशा बना रहा है और बना रहेगा. ये इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस एंड ज्योग्राफी आर दो सब्जेक्ट्स, सिमिलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जिनका रेलिवेंस हमेशा बना रहेगा. तो इसमें करियर, इसको करने के बाद आप GI स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, रिसाइकलिंग ऑफिसर होता है, टाउन प्लानर, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है. एक इस सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. मैंने थोड़ा सा लॉ के बारे में बताया था, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ. लीगल स्टडीज और जुडिशरी जिसे कहा जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th करने के बाद 5 years का होता है, आप जिसे BA LLB कहते हैं, कंबाइंड होता है. और अगर आपने BA कर रखा है तो आप 3 years का LLB करते हैं. रिगार्डलेस आपका सब्जेक्ट क्या था, अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट सोशल साइंसेस का पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, इट डजंट मैटर्स बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जाम. वी हैव अराउंड 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, जिसमें से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद इज वेरी फेमस. देन वी हैव law faculty in Delhi University, in Jamia, AMU, and in so many other universities. इसके अलावा बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं. तो आपको, अगर आपने सोशल साइंसेस पढ़ा है, तो जब एंट्रेंस एग्जाम्स होता है तो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स ने थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा होता है. सबसे मेरा मतलब है 11th 12th में अगर आपने सोशल साइंस पढ़ा है, ह्यूमैनिटीज पढ़ी है, तो आपने थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, सिविक्स पढ़ा है, ये सब पढ़ा है, तो आपका जीके का थोड़ा जो बेस है वो स्ट्रांग रहता है. और फिर आप इन एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी प्रिपरेशन करते हैं और आप कॉमन एंट्रेंस लॉ टेस्ट होता है इंडिया में, आप वो क्रैक करके लॉ में जा सकते हैं. देखिए, लॉ का मतलब सिर्फ ये जो आप देखते हैं जिस तरीके से मूवीज में या सीरियल्स में या न्यूज में कभी दिखाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कि आप जज के सामने अपने आर्गुमेंट्स रख रहे, नहीं, ऐसा नहीं है. सभी एडवोकेट्स का मतलब ये नहीं होता. यू कुड बी अ लेबर लॉ, यू कुड बी एनवायरमेंटल लॉ, यू कुड बी अ बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, आप किसी भी उसमें जा सकते हैं. जरूरत किस चीज की है? यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्किल. नंबर 1, इफ योर ड्राफ्टिंग स्किल इज वेरी गुड, तो पूरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जितना लोअर जुडिशरी है, ऐसा नहीं है कि सारे एडवोकेट जब उनके पास केसेस आते तो वो खुद से बैठ के सारी ड्राफ्टिंग करते या उनकी टीम करती, नहीं. समटाइम्स दे कॉन्टेक्ट टू द अदर ग्रुप्स हु आर वेरी गुड एट ड्राफ्टिंग. अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है
तो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल अच्छी है, तो लॉ इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. And similarly, if you have a good communication skill, if you really feel that after observing all the norms of law, after studying law for LLB के बाद, यूजुअली लोग LLM करते हैं, LLB के बाद आप एलिजिबल तो हो जाते हैं बार का मेंबर बनने के लिए, लेकिन पीपल वोंट टेक यू दैट सीरियसली. तो LLM करना एक तरीके से लाजमी होता है, और उसके बाद आप बार की मेंबरशिप लेते हैं. और अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपका आर्ग्यूमेंटिव स्किल बहुत अच्छा है, आपके अंदर समझ है जिरह करने की कोर्ट रूम में, तो डेफिनेटली आप उसमें जा सकते हैं. इसके अलावा हर स्टेट में जुडिशरी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जाम्स जिसे करते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, जब आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट जजेस बनते हैं. तो उसके लिए भी आपका सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, आपने LLB पढ़ा हो. एक बात मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स को, आप सोशल साइंस के हो या कहीं के भी हो, लेकिन या किसी भी डिसिप्लिन के हो, दो चीजें हमेशा याद रखिएगा. आप पढ़ क्या रहे और आप पढ़ कहाँ से रहे. What subject you are studying and from which institution you are studying, that really matters. Just for the name's sake, if you are trying to get a degree from some not good university and institution, that is not going to basically pay you in the future. तो सब्जेक्ट सही चुनना जरूरी है. सिमिलरली इंस्टीट्यूशन सही चुनना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की भी एक ब्रांड वैल्यू होती है, और ब्रांड वैल्यू ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी बन जाती. इट टेक्स डेकेड्स टू अर्न दैट ब्रांड वैल्यू. इसलिए जैसे मैंने कहा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद ऐसे ही टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है, बिकॉज दैट हैज अर्न दैट वैल्यू, दैट इम्पोर्टेंस, दैट स्टेटस. आप दिल्ली का लॉ, दिल्ली के हाई कोर्ट में 80% से ज्यादा सीनियर एडवोकेट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के हैं, एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड. तो आप समझ सकते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है, इसीलिए जब भी आप कहीं एडमिशन लेंगे जरूर याद रखिएगा कि उस इंस्टीट्यूशन की, उस यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है, वो कितना पुराना है, वहाँ की जो डिग्रीज है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या वैल्यू है, वो आपको पता होनी चाहिए. लास्ट में मास मीडिया और जर्नलिज्म, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 6. मैडम, कैन आई स्पीक फॉर 10 minutes more? Is it okay? You want to talk on mass media? Yes, ma'am, you can take 5 more minutes. 5 more minutes, yeah. So mass media and journalism is like one of the very good areas for the students who has the ability to connect the dots, to narrate the things, to understand the facts properly in the context. फैक्ट्स सबके सामने होते हैं, फैक्ट्स को कनेक्ट करना, उसके बेस पे स्टोरी बिल्डअप करना या उसके बेस पे पास्ट को कनेक्ट करना, that's the ability of a good social scientist or of a good students of social science, at least I can say. आप इसमें और मैं आप ये भी देखेंगे, चाहे IIMC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, या जामिया में काफी पॉपुलर है मास मीडिया रिसर्च सेंटर, इन सब में जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर अगेन फ्रॉम द सोशल साइंस डिसिप्लिन. सिमिलरली, क्योंकि आपका काम ही वही है, आपको सोसाइटी में जाकर जो चीजें हो रही है, जो इश्यूज हो रहे हैं या जिस बैकग्राउंड में हो रहे हैं, उनको समझना पड़ता है, उन लोगों से पूछना पड़ता है, उनके कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना पड़ता है. इसीलिए 80-90% जो स्टूडेंट्स होते हैं इन सेंटर्स में, मास कम्युनिकेशन में, वो सोशल साइंसेस के होते हैं. प्रॉपर तो वैसे जो मेरे हिसाब से करना चाहिए, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आपको करना चाहिए, जो 3 साल का होता है, बट 12th के बाद. लेकिन अगर आपको लगता है that you don't want to devote that time, so you can do 1 year diploma in journalism and mass communication. But if you want to have a substantial career in mass media, so I think you should go for it. इसके अलावा यूपीएससी पे मैं दो, बिकॉज आई थिंक वी नीड टू वाइंड इट अप. यूपीएससी में जो लास्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है सोशल साइंस के स्टूडेंट्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए, इंडिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं या स्टेट सर्विसेज और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए भी जो प्रिपरेशन करते हैं, वो सोशल साइंटिस्ट ही होते हैं, सोशल साइंस का हिस्सा होते हैं, कभी ना कभी उन्होंने पढ़ा होता है. वो क्यों पढ़ा होता है? अगेन आई एम टेलिंग, फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देयर विल बी वन पेपर ऑफ जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस. जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस कॉम्बिनेशन किसका होता है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, सोशियोलॉजी and philosophy. So if you have studied a little bit of all this subject at school level or at undergraduate level,
तो आपको रीब्रश करना होता है या थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है इन कंपैरिजन ऑफ द अदर स्ट्रीम। सिमिलरली मेंस में जब आप आंसर्स लिखते हैं तो आपकी राइटिंग स्कूल, बिकॉज आप सोशल साइंस के स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स आंसर यूजुअली लंबे लिखते हैं, बहुत सारे कंटेंट और फैक्ट्स आपको लिखना होता है, तो आपका एक अच्छा कमांड होता है राइटिंग स्किल पर। इसीलिए यूपीएससी में जो सोशल साइंस सब्जेक्ट चूज करते स्टूडेंट, दे परफॉर्म रियली वेल। ठीक है, इंजीनियर्स भी आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम में, लेकिन अभी आप लेटेस्ट रिजल्ट देखेंगे या इससे पहले के भी कुछ साल के आप रिजल्ट देखें, अगर आप उसमें रेशियो निकालेंगे तो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग वेरी वेरी वेल। थैंक यू सो मच। आई थिंक द टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। Thank you so much, Dr. Babli Parveen, for your bubbling information and opportunities in humanities, liberal arts, social sciences. And thank you so much that we got to know today that liberal arts can be a combination even in IIT, and there are a lot of choices and opportunities in IIT. And you have got job opportunities more in social sciences. There are wide range of opportunities. So please don't shy away if you have the aptitude. It's not just the maths and science that gives you, but whereas social sciences also have got great opportunities. And choosing the right options. Thank you so much, Dr. Parveen, for we can see topmost positions in India with the people who are acquiring social sciences. I think Dr. Manmohan Singh is one of such examples who is globally recognized during recession time. And as Madam has very well said, talked about introvert and extrovert personalities. Please don't bother and get shy away with your personalities. Enjoy your personality with good communication skills. Only thing you have to require is to acquire all 21st century skills, that are the 4 C's, where you should have critical analysis, critical thinking, collaborative skills, creative skills, and communication skills. So if you are introvert also, you have opportunities in critical thinking and analytical thinking fields. So you are anywhere, you have so many opportunities. And ma'am has even given a clear demarcation between the job opportunities for an introvert and extrovert personalities. That was really a good eye-opener, ma'am. Thank you so much. You need not shy away of your personality and your natural abilities. That is going to give you a very powerful career. Interest, quality, and time is essential for every subject. As ma'am said, it's not just maths and science. You need to devote more time, but every subject requires your quality time. And some of the science students may lack the interest of emotional intelligence. Madam has pointed out very well that it is the need of 21st century that you have to be empathetic with good emotional intelligence is also required along with your IQ. And your linguistic aptitude, if it is combined with the social sciences, you can make a master in your field. And teaching financial teaching subjects are very rewarding professions. And history is no more of mystery. Now museology, archaeology, think tank policies are amazing, what she has told us all about. And if you are a linguist person, can go for subject languages like Japanese, Spanish, Arabic, and more of foreign languages. So there are a lot of opportunities, and Bachelor of Economics and Honors is equivalent to become an IAS officer, is also, amazing to know today. And geographic awareness can give you resources available and geological subject, legal studies, and very important is to match your university fit. Student and university fit is very important. Please do a very good survey of the universities that you are joining. And mass media will also give you an opportunity to find out the difference between facts and fake stories. Storytelling is also coming up to be a latest talent. We'll see that your journalism gets involved in storytelling and mass media, mass communication, UPSC. Thank you so much, ma'am. A lot of wonderful information. We were having less time. Would love to have you again in our session. There are a few more questions, ma'am. I'm going to, people are asking. So one question is, digital university will be started in near future. So what is the future of a teaching professor or a profession? Okay, yeah, there is the proposal for digital universities, but like the eligibility criteria has not been decided differently for them. So if you need to teach in the university, probably there will be a little fluctuation
there will be little exemption, but you have to be at least masters and then PhD in that subject for sure. Like as per the new education policy, they have scrapped the MPhil program, so you don't need to do MPhil. Net probably be, that is also going to be exempted in the future, because for 2 3 years in 2009 period it was already exempted, but it could not be less than PhD. That's my understanding. And if you are, even the criteria is like, for any reason become like only master, but if you get the command of that subject, you will be always in demand. Always remember, your every single qualification will pay you off in an extraordinary way. For example, now as per the new UGC rule, you can have 2 degrees simultaneously, and it is a very big thing. For example, if you're doing masters in sociology from Delhi University, you can do geography, masters in geography from IGNU also, which was not possible for us. Otherwise, I think I am the kind of a person who would have done so many masters in so many different subjects. So don't try to limit yourself as per the basic eligibility criteria for the digital university also. Let's focus. If you want to excel in that profession, you should have a PhD degree for sure. Thank you so much, madam. Hope this our anonymous attendee must have got the answer. If you're satisfied, fine. Otherwise, you can raise any other question if you want. And the other question is, what are the job opportunities for an archaeologist? For archaeologists, there is a huge, as that's what I'm saying. If somebody is interested, go and check on the Archaeology Survey of India. It is one of the oldest organization in India. Basically, National Archives of India and Archaeology Survey of India. These are the two important bodies which deals with history. No history can be written without Archaeology Survey of India, because the work of Archaeology Survey of India is the first private work to do the excavation works. Whatever information we have, for Harappan civilization, for ancient India, and so on, and the stories have been built by different historians because of the contribution of Archaeology Survey of India. So Archaeology Survey of India has a head office we have in Delhi. There are job opportunities certainly, but apart from that, in every state there is Archaeology Survey of India office, and at least in every single office they need 20 to 25 archaeologists, similarly subordinating staff and other officers also. It is part of Ministry of Culture. Remember, most of the organization which deals with history are part of Ministry of Culture. So if you do really well in history, for example, if you have a good degree in history, master's degree in history, and you do one course of archaeology for 1 year or 2 years, you get some experience of working over there. Eventually, even you can reach to the position of the Director General of Archaeology Survey of India, which is the highest position. In India, in only 2 organizations we have this post. I'm not talking about the police service, but in general, in National Archives of India and in the Archaeology of Survey of India, the post of Director General, and it's a very big thing. But even if you don't reach to that post, but if you get the diploma course, you will be get absorbed anywhere in the Archaeology Survey of India's office, because as I told you, just they are facing a huge disappointment that they are not getting application whenever they are advertising post. Now they have come up with another new branch, which is the extension of head branch, that is on ITO. And recently, last year, they advertised post for research officers, for archaeologists, which was 100 plus post. So you can just follow those advertisement and details and try to get at least 1 year diploma course, and you will get to learn that there are a lot of job opportunities, because Archaeology Survey of India is the head who controls all the monuments of India. और आप सबको पता है, India is a country is full of or dotted by historical monuments. So our next question was, is archaeology is an art subject? I think madam has already given this brief description about it. And another question is, what are the best colleges for history if you want to go for history as a subject? Actually, now students must be aware. First of all, they need to be very aware these days, because UGC is coming up with so many new rules and regulation. Now they have introduced CUET, Common University Entrance Test, in 2022. So now your cutoff is like, I'm especially telling to those students who are in 12th standard probably,
you have to appear in the entrance test exam to get admission in the best colleges of the Delhi University or in the best college of any central university. आपको ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जो मेरिट में टॉप पे होंगे उनका एडमिशन होगा. दिल्ली यूनिवर्सिटी में वी हैव अ लॉट ऑफ like St. Stephen's to Hindu to Hansraj, Venkateshwara, Miranda, LSR. These are the colleges. See, I mean, there should not be differentiate. I mean, but since students are asking, I'm just telling why we are giving more status to these colleges in terms of certain subjects or overall subjects, because they have a very good faculties, very trained faculties, very senior faculties who has done a lot of research works. तो अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा. आई थिंक जिसके फॉर्म्स की अभी डेट शायद चल भी रही होगी या आने वाली होगी, या अगर अभी आप 10th 11th में है तो अब आपको इसको एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें 3 कैटेगरीज बना दी गई है. लैंग्वेज का एग्जाम होगा, कोर सब्जेक्ट एग्जाम एंड थर्ड वुड बी द एप्टीट्यूड टेस्ट. इन तीनों की मार्किंग की जाएगी. 300 का ये टोटल एग्जाम होगा और आपकी जैसे मेरिट आएगी, अगर आपकी अच्छी मेरिट आ गई तो आप सेंट स्टीफेंस में पहुंच सकते हैं, रिगार्डलेस अगर आपके 50% मार्क्स भी 12th में आए हैं. सो इट इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स to get admission in the topmost colleges of India through the entrance test if they really do the hard work. Thank you, ma'am. The last question is, what are the, ma'am, can you say a few things about psychology? She would like to know about the careers in psychology, ma'am. This psychology is one of the subject which is very intense. First of all, you have to remember psychology sometimes fascinates students because there's a lot of, fascination about this subject, but psychology is a very intense subject. Philosophy, for example, is a very intense subject. It will actually make your mind exhaust, because I have seen the students who are studying psychology and philosophy, most of the time they seems to be in the parallel world somewhere. But psychology, there are a lot of agencies who need a good psychologist. Even in UPSC, when the selection board conduct the interviews, there are always a psychologist is sitting in all the, I will avoid to name the agencies, the investigation agency, they hire psychologists because they deal with the criminals. In judiciary, there is a need of psychologists. Then in university, of course, you can become the professor of psychologist. Psychologists are also part of the think tank as well. Psychologists are in demand even in the political parties these days also. So psychology is one of the subject, if you are ready to make yourself totally absorb into that, it has a lot of opportunity. But psychology is not an easy subject in terms of you cannot just read 2 hours or 3 hours and then you can start imagining that you will get a good job. No, you have to be extraordinary to put maximum effort into that subject. और बहुत सारे, जैसे मैं बताया, इतनी सारे इंडिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज ही, अगर आप उन सब के रीजनल ब्रांच होते हैं, फिर उन सब के स्टेट ब्रांच होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच होते हैं, तो कई 100 की संख्या में ये ऑफिसेज है. इसके अलावा जुडिशरी में है ही आपके पास, थिंक टैंक है, एकेडमिक्स तो खैर है ही साइकोलॉजी के लिए. स्कूल लेवल पे आप यू कैन नॉट, साइकोलॉजी सब्जेक्ट स्कूल लेवल पे बहुत पॉपुलर नहीं है. तो अगर आप बीएड या एमएड इस सब्जेक्ट में करने के लिए सोचते हैं तो प्रोबेबली यू वोंट हैव दैट job opportunity at school level. But if you are aiming high, आप masters कीजिए subject में, and then you will see there are a lot of job opportunities are waiting for you. Yeah, thank you so much, ma'am. I think we have got lot of opportunities in school also for counselors nowadays, Yes. and especially post pandemic, with many of us are losing our mental wellness. For mental well-being and wellness, we need to have a lot of counselors. But as you said, it's a very critical subject. You need to have a lot of experience. Everybody cannot become a psychologist. It is a very special subject and very you have to be very careful, but it's very interesting. Thank you so much, ma'am, and thank you, AMP, for organizing this session and having Dr. Babli Parveen, ma'am, with us. And I wish that all the students will take benefit of her talks and make sure that they choose subjects according to their interests and potentials and make a great career. All the best to all the great participants and your questions. Thank you so much. Thank you once again.